नाउ नो मोर वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। ओके, एक बार मैं वापस से सेंटेंसेस क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 11 वी हैड स्टार्टेड। सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया एक फॉर्मेट है जो कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है मीन्स एक कंप्लीट मीनिंग आपको प्रोवाइड करवाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, वर्ड्स के कंबाइन करने से सेंटेंस नहीं बन जाता। लेट सपोज इफ आई राइट, let me just a second, yeah, here if I write finished I work my, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है finished I my work, is it a right sentence? और क्या ये right sentence है या क्या ये sentence है? You can also write in the chat section that is it a right sentence or not. Come on, tell me, finished I work my, is it a right sentence? क्या ये राइट सेंटेंस है? क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, तो ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Finished I work my is a combination of words, but is it a sentence? That's my question. You have to write in the chat section. I will not unmute anyone. You have to write in the chat section. Come on, dear students, reply me fast. Yes or no? Is it a sentence or not? That's it. You have to respond. All right, let me tell you, if no one is interested to tell, that finished I my work my is not a right sentence. It's not a right sentence. It's wrong sentence, dear students. It is completely wrong sentence, right? The correct one will be I finished my work. जो right sentence होगा वो क्या होगा? I finished my work will be the right sentence. Why so? Because this one is conveying the complete meaning. Are you getting my point? Finished I work my combination of words to है. It is a combination of words, but it is not telling the complete meaning. Complete meaning is told by this I finished my work. इसने मुझे क्या किया? Complete I finished my work ने मुझे complete sense दिया. That's why it will be my sentence. Right? So I hope that what is sentence, that is clear to you all. You might have already you might know about it already. So now let's move ahead with the types of sentences, है ना? मेन डिस्कशन जो हमको करना है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का है. द फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस इज डिक्लेरेटिव, द सेकंड वन विल बी इंटरोगेटिव, थर्ड वन विल बी इंपेरेटिव एंड द फोर्थ वन विल बी एक्सक्लेमेटरी. सो वी हैव टू डिस्कस दीज फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, सेकंड वन इज इंटरोगेटिव, third one is imperative, and the fourth one is exclamatory sentences. Right, today we will be discussing declarative and interrogative only, right? So let's begin with that. The first one we have is declarative sentence. Just a second. Yeah, so declarative sentences express or describe some idea or thought in a straight, impersonal and objective way. Such sentences end with a full stop. Alright, declarative sentences express or describe some idea or thought in a straight, impersonal and objective way. Such sentences end with a full stop. So what I am saying, try to understand. देखिए, declarative sentences क्या होते हैं dear student, जिसमें आप आपके ideas को express कर रहे होते हैं. You share your ideas or thoughts, हाँ? When you share your ideas or thought in a straight, impersonal and objective way, मीन्स वॉट, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा सीधा जाकर के आप अपने आइडियाज को शेयर कर देते हैं. तो इन दैट केस व्हाट यू डू, इन दैट केस यू यूज द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इसको बिफोर मूविंग टू दीज एग्जांपल लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. व्हेन यू आर गिवन होमवर्क, ठीक है, जब आपको होमवर्क दिया जाता है, नेक्स्ट डे यू गो टू टीचर, मैम और सर आई हैव फिनिश्ड और आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क. सो व्हाट यू आर सेइंग, यू आर sharing, you are describing your idea or thought in a straight way.
कि सर मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिक्लेयरिंग, आप डिक्लेयर कर रहे हैं इस चीज को, दैट्स व्हाई दैट इज कंसीडर्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। नाउ अंडरस्टैंड इट विद दीज एग्जांपल्स ओनली, है ना, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनसे समझते हैं हम। माई फादर इज ड्राइविंग टू द बीच फॉर द लॉन्ग वीकेंड, ठीक है, लॉन्ग वीकेंड से मेरे फादर क्या है, बीच पे ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि बहुत मतलब वीकेंड्स पे मेरे फादर क्या है, बीच पे ड्राइविंग करते हैं, राइट। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द ग्लीमिंग ओशियन, ग्लीमिंग का मीनिंग yesterday I told you in the vocabulary session that gleaming means क्या होता है डियर स्टूडेंट, शाइनिंग, ऐसी चीज जो शाइन करती है, जो चमकती है। Yes, the aeroplane flew over the gleaming ocean. Gleaming means क्या होता है dear students, जो शाइन कर रहा होता है। ग्लीमिंग मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो शाइन कर रहा होता है, राइट। तो एरोप्लेन फ्लू ओवर द ग्लीमिंग ओशियन, जो एरोप्लेन था वो कहाँ से फ्लाई करके गया है, ग्लीमिंग ओशियन से फ्लाई करके गया है। सो दिस इज अगेन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये भी एक तरीके का कैसा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, डिक्लेरेटिव ही है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दो टाइप के होते हैं, तो अफर्मेटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। The first is an affirmative sentence give a positive statement. Affirmative sentence जो होता है dear students, ये कैसा statement देता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। व्हाट डज इट मीन, यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स ओनली, जब आप पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, जब आपके सेंटेंसेस में नो, नेवर, नॉट का डिस्कशन नहीं होता है, सिंपल टॉक्स जब होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझें इसको अगर हम, सो फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स, आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, क्या यहाँ पे मैंने नो का यूज किया है, नॉट या नेवर, इनमें से किसी भी वर्ड का यूज किया नहीं, मैंने यूज नहीं किया। सो दैट विल बी एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था, अफर्मेटिव मीन्स व्हाट, पॉजिटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है, कि जब कभी भी हम पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे होंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। आई हैव मेनी स्टोरी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं। डेविड प्लेज द पियानो, डेविड क्या करता है, पियानो प्ले करता है, ठीक है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है। तो इन ऑल दीज सेंटेंसेस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट अफर्मेटिविटी, यानी कि पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मींस पॉजिटिव की सेंटेंसेस की बात होगी तो उनको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। नाउ कम्स द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिएगा, ए नेगेटिव सेंटेंस स्टेट्स द नेगेशन ऑफ एक्शन। नेगेशन ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज का मना करना, किसी एक्शन को मना कर देना या उसके होने से मना कर देना। दैट समथिंग इज ईदर नॉट ट्रू और नॉट करेक्ट, मतलब कोई चीज या तो सही नहीं है, ट्रू नहीं है, या करेक्ट नहीं है, और नॉट हैपनिंग, या वो नहीं होने वाली है। जनरली a negative sentence is formed by adding the word no, not और never। यानी कि जब भी आप एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, what do you use, you use no, not और never। आप no, not और never का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। इसको एक सिंपल अगर एग्जांपल से समझाएं, जस्ट अ सेकेंड। यस, इसको आप एग्जांपल से समझें। नेगेटिव के एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम। नेगेटिव के एग्जांपल्स हो सकते हैं, आई हैव नो स्टोरी बुक, मेरे पास कोई भी स्टोरी बुक नहीं है। इन अफर्मेटिव वी सेड आई हैव मेनी स्टोरी बुक्स, यहाँ पे नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं किया, बट हियर वी यूज्ड नो, आई हैव नो स्टोरी बुक्स, तो यहाँ पे हमने नो का यूज किया, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, दोनों है तो डिक्लेरेटिव के पार्ट ही, पॉजिटिव वाला भी डिक्लेरेटिव का ही पार्ट था, और affirmative वाला भी, मतलब affirmative was also the part of declarative and negative is also the part of
डिक्लेरेटिव। बट द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे नो नॉट नेवर का यूज करते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं, और वहां पे ऐसे कोई वर्ड्स का यूज नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो डेविड डज नॉट प्ले द पियानो, डेविड पियानो प्ले नहीं करता है। He never speaks the truth, वो कभी भी सच नहीं बोलता है। So this is all about your declarative sentences। ये सब जो डिस्कशन किया स्टूडेंट्स हमने, वो किसके रिगार्डिंग था, डिक्लेरेटिव स्टूडेंट्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग था, राइट। सो नाउ we are not left with much time, but I think we should cover little bit part of interrogative sentences, otherwise हम लोगों के पास कल बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, यू आस्क क्वेश्चन, आप इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें इसको पता कैसे करेंगे, हाउ वी विल कम टू नो दैट दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। वेरी सिंपल ट्रिक, जस्ट चेक एट द एंड if there is a question mark, if there is a question mark in the end, then it will be your interrogative sentence. You can see in the examples, last में question mark आ रहा है कि नहीं आ रहा, yes आ रहा है, तो it will be interrogative. Again in the B example as well, in at the end we are getting the question mark, hence it will be interrogative sentence. So it is very simple, just check at the end, if you are getting the question mark, it will be your interrogative sentence. That's it, you don't have to do much. So now understand it with some examples, with some more some examples. How did you find the card, ठीक है, how did you find the card, यानी कि आपको ये कार्ड कहाँ से मिला, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको कार्ड कहाँ से मिला। सो अगेन इफ यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, दैट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, दैट इज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आर वी गोइंग टू ए रेस्टोरेंट, ठीक है, लेट्स सपोज इट्स योर ममाज बर्थडे, ठीक है, आज आपका क्या है, आपकी मम्मा का बर्थडे है आज। नो व्हाट हैपेंस, in the evening your father comes to home, right, आपके फादर घर पे आते हैं, and you ask to him, are we going to a restaurant, क्या हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मम्मी का बर्थडे, तो बाहर तो बाहर तो जाएंगे यार, तो आप क्या पूछ सकते हैं कि क्या हम रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं। तो अगेन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, आप उनसे क्वेश्चन ही तो आस्क कर रहे हैं। सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप दैट दिस इज क्लियर, राइट। जल्दी से हम लोग थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमने दो सेंटेंसेस पढ़े थे बच्चों, एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, राइट। इन द सेम वे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी थ्री टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज yes or no question, the B one is, or the second one is WH interrogative questions, and the third one, the C one is choice question or alternate questions। क्या होते हैं ये, that we are going to check, yeah, so क्या होते हैं, let's see that। First one, yes or no question। These types of interrogative sentences can be answered in a yes or no, यानी कि ऐसे questions जिनका आंसर सिर्फ yes में या no में दिया जा सकता है। That's it. Let's suppose if I ask you, is it raining? Is it raining? क्या अभी रेन हो रही है? So the answer would be either yes or no. That's it. या तो आप yes बोलोगे या आप no बोलोगे, इसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, राइट। तो what I will say, उन क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे, yes no क्वेश्चंस कहेंगे। क्या कहेंगे उनको, yes no क्वेश्चंस उनको कहा जाता है। When the answer is given either in yes or in no, then we will say yes, it's a yes no interrogative sentence, right। Next one is should I telephone you or send an email। टेलीफोन यहाँ पे मीन्स आ रहा है कॉल करने से, तो शुड आई कॉल यू और सेंड एन ईमेल, क्या मुझे आपको कॉल करना चाहिए या एक ईमेल सेंड कर देना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि यस यू शुड टेलीफोन मी और सेंड एन ईमेल, ठीक है, इस तरीके से, राइट। नाउ मूव टू द WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, these questions are introduced by a WH word like who, what, when, why और how, and they elicit an open-ended response। देखिए elicit का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। How many of you remember that elicit का मीनिंग? Write in the chat section. Yesterday only I told you. Elicit हमने कल vocabulary में पढ़ा था। Write in the chat section what is the meaning of elicit. Fast everyone. Come on dear students, fast write in the chat section what is the meaning of elicit.
Nobody knows? Come on, dear students, fast. We don't have much time. If you know, then write. Otherwise, I'm moving ahead. Obtain. Very good. Very good, Aditi. All right. So Aditi has answered already. Obtain. यानी कि obtain मतलब कि वहां से कुछ पाना, वहां से क्या हमने आउटकम लिया है. ठीक है. Yesterday also I told you कि इस क्लास के बाद आपकी पेरेंट्स आपसे पूछ सकते हैं What did you elicit from your today's session? आज के सेशन से आपने क्या एलिसिट किया. दैट मीन्स व्हाट कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा. बर्निंग आउट नहीं बेटा, ब्रिंगिंग आउट होता है. देवांश पवार बेटा, बर्निंग आउट नहीं होता, ब्रिंग आउट होता है. यानी कि आपने क्या आउटकम वहां से निकाला, क्या आपने ऑब्टेन किया. सो यहाँ पे वापस आ जाइए. चलिए, तो WH वर्ड हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ दे एलिसिट एन ओपन एंडेड रिस्पॉन्स. और वहां से हमारे को क्या क्या ऑब्टेन होता है, एक ओपन एंडेड रिस्पॉन्स. यानी कि वो ऐसा रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा जो कभी एंड नहीं होने वाला है. एग्जाम्पल से समझ लीजिए. वाई आर यू बोर्ड, आप बोर्ड क्यों हुए हैं, यानी कि आप इतने बोर क्यों हैं. तो यहाँ पे एक ओपन एंडेड रेस्पॉन्स होंगे, यानी कि आप अपने हिसाब से रेस्पॉन्स दे सकते हैं, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है. बिकॉज देयर मे बी मल्टीपल रीजंस ऑफ योर बोर्डमनेस. नेक्स्ट, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ पे वर्क करते हैं. So you will respond in that I work here, I work there and something like that. Who won the final cup in 1997? 1997, 20th century, right? तो final cup कौन जीता था. So again there will be some response or some answers to that question. So that will be open ended response वो होगा. Right? Okay, the remaining part, the choice question, alternate question, we will be discussing in tomorrow's session because now we are getting late and you're also getting late for the next session. All right, dear students, thank you everyone for attending the session. Bye bye, have a great day.